Hello everyone, welcome to Shifting Gears, and I am seated inside a Tata Nexon EV. Now this is not a review of the Nexon EV, but in today's video हम बात करने वाले हैं about all of those questions which you have in your head, in your mind about owning an EV, about the EV infrastructure. And to answer all of those questions, I have with me Mr. Nilanjan Gupta, who is the founder director of the Sustainer. Sustainer is an EV infrastructure, EV charging solutions company, and he will help us understand better based on the questions that we have, if at all we should buy an EV or not, and so that you can understand if today you are ready to own an electric vehicle or an electric two-wheeler or not. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं पूछूंगा इन्हें कुछ सवाल और ये देंगे उन सवालों के जवाब, so that you are an informed car or two-wheeler buyer. So hello Mr. Nilanjan, give us a very quick overview of the EV infrastructure currently in India, at what rate it is growing and how fast is the EV adoption in reality here in our market, except for the sales releases which the car manufacturers are sharing with us. EV is basically electric vehicle. People sometimes confuse with a hybrid car and an electric vehicle car. EV, when you say EV, it's a pure electric driven car. It doesn't have any generator, any engine in that. It simply runs on battery and a BMS system, and it requires charging, and it runs on that. Most of the vehicles that we see in India are lithium ion batteries or lithium sub variant batteries, and they work on battery and which requires charging. We will not talk about the EVs, what happens in the motor, how it works and all that. Today we're talking and trying to give you an overview or solutions that at various situation, how does the EV owner live up to the charging the vehicle as well, be it charging at the home, be it charging at office, be it charging at long drives, intercity drives. And major problem or major question or anxiety that people have, अरे सिर्फ 200 किलोमीटर का रेंज है, हाउ विल आई डू. 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का रेंज बहुत कम होता है. सो वी आर हियर टू टेल यू दैट what is EV, where do you charge that. A lot of people think that I have to go to petrol pump to charge it every day. Vice versa, EV charger or EV comes with a home charger. 90% of your charging session is at your home. So when you go back home, you put the car on charging, and next day morning you get a fully juiced up EV which can easily go 200 kilometers plus or according to your vehicle's range. तो 200 किलोमीटर जो है, this is enough for any city in India. अगर आप कलकत्ते से खड़गपुर जा रहे हो, गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे हो, अमृतसर से चंडीगढ़ जा रहे हो और बॉम्बे से पुणे जा रहे हो, ये 200 किलोमीटर का रेंज इनफ है किसी भी दो शहर के बीच में आवन जावन करने के लिए. आप एक बार एक डेस्टिनेशन सेकंड डेस्टिनेशन जाते हो. इंडिया में आज की तारीख में हर 100 किलोमीटर पे एक डीसी चार्जर उपलब्ध है. ये काफ़ी ब्रांड्स जैसे कि टाटा पावर एंड काफ़ी सारे चार्जिंग इंफ्रा कंपनीज है जो हर 100 किलोमीटर में एक डीसी चार्जिंग पॉइंट लगा चुके हैं, एंड जिसके आप ऐप में सर्च कर सकते हैं. तो आपका एंटीडोट जो आपको रेंज एंग्जाइटी का होता है कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाना है, कहाँ चार्ज करना है, आपके मेजर दो चीज़ें हैं. आपकी गाड़ी घर पे चार्ज होगी. सेकंड, आपको हर शहरों में, हर बड़े शहरों में हर 100 किलोमीटर एक डीसी चार्जर आज के दिन में भी उपलब्ध है. So if at all I am considering to buy an electric vehicle in the future, आप मुझे बताइए क्या कॉस्ट है एक EV चार्जर सेटअप करने के लिए in my parking spot? मेजॉरिटी ऑफ कार्स जो इंडिया में आती है, एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू, ये गाड़ियों के साथ ही होम चार्जर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. तो जब आप कोई भी गाड़ियाँ ले रहे हो, उसके साथ आपके घर पे चार्ज करने के लिए वॉल बॉक्स चार्जर ये ऑटोमोबाइल कंपनीज खुद प्रोवाइड करती है. इसके लिए आपको दो चीज़ लगेगी. अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको सोसाइटी में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मैं अपने मीटर से अपने पार्किंग तक, अलॉटेड पार्किंग तक एक वायर
रीले करना चाहता हूँ तो उसके लिए सोसाइटी आपको एक एनओसी प्रोवाइड करेगी। रिसेंटली महाराष्ट्र मुंबई में कोऑपरेटिव्स ने इंस्ट्रक्शन दी है हर सोसाइटी को कि किसी भी मेंबर ने अगर अप्लाई की है तो उनको 7 दिन में एनओसी देना ज़रूरी है। सेकंड, आपको लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास जाना है और आपके मीटर को अपग्रेड करानी है एज़ पर रिक्वायर्ड चार्जर। जो आपकी जो चार्जर का कैपेसिटी होगी जो आपको गाड़ी वाले बताएंगे, आपको वो मीटर आपको अपग्रेड करानी टू द कैपेसिटी रिक्वायर्ड। ये ज़रूरत है फ़िलहाल। बाकी घर पे चार्ज लग गई, आपके घर पे गाड़ी चार्ज हो गई। इसमें ऐसा भी होता है कुछ लोग एक चार्जर लगाते हैं घर पे, बट उनका वर्क प्लेस या फैक्ट्री या फार्म हाउस घर से थोड़ी दूर जगह पे है। तो इसके लिए जो होम चार्जर्स आती है, एक 7.5 किलोवाट की चार्जर मोटा मोटी एक 50,000 की आती है, और जो ऑडी ई-ट्रॉन और जो बड़ी गाड़ियाँ आती है उनके साथ जो चार्जर आती है वो करीबन 80-90 हज़ार की आती है। उसके साथ केबलिंग की कॉस्ट एक 10 से 15 हज़ार और पड़ती है। तो आप मोटा मोटी पकड़िए कि 70 से 1 लाख रुपए में आपका एडिशनल चार्जिंग फैसिलिटी इजीली हो सकता है, आप कहीं भी लगवा सकते हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल काफी सारे लोग पूछते हैं, अगर आपको एक ईवी चार्जर सेटअप करना है आपके रेसिडेंशियल स्पॉट में या आपके कमर्शियल फैसिलिटी में, क्या इसके लिए आपको कोई अलग वैलिडेशन, अलग लाइसेंस की जरूरत है? नहीं, इंडिया में ईवी चार्जर लगाना कम्प्लीटली डी लाइसेंस्ड है, बट आपको लोकल सोसाइटी या प्रॉपर्टी मैनेजर की परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। सोसाइटीज़ में सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है। काफ़ी टाइम सोसाइटीज़ आती हैं कि उनके पास मेंबर्स की रिक्वेस्ट आई हुई है, बट वो उनको ये सेटअप करना या यह समझ नहीं होती कि उनको एक एक मेंबर को एक एक करके लाइसेंस देनी है या परमिशन देनी है, या सोसाइटी खुद चार्जर लगा के देनी चाहिए एज अ पब्लिक एम्यूनिटी, या उसमें एसी लगाने चाहिए 10, या उनको एक डीसी लगा के देनी चाहिए। ये चार्जर कॉस्ट क्या होगी, और अगर उसको फेज वाइज मैनर में इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं अभी तो गाड़ियाँ है नहीं, बट हम लोग एक बार में पूरी केबलिंग कर देंगे बिल्डिंग की कि जिससे चार्जर आएंगी वैसे अपने अपने चार्जर लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीके में सोसाइटीज़ अपने देश में काम कर रही हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि वोटिंग करके हर पार्किंग तक एक बेसिक केबलिंग करके रखते हैं ताकि हर मेंबर अपने हिसाब से अपने अपने तरीके में केबल ले जाए। केबलिंग एक रिस्पॉन्सिबल यूनिफॉर्म वे में केबलिंग होती है हर पार्किंग लॉट तक, ताकि जैसे जैसे लोग अपग्रेड करेंगे, चेंज करेंगे टू ईवी, उनको सिर्फ एक चार्जर लगाना, माउंट करना है, और उसके लिए कोई नया सिविल वर्क, कोई नया इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं होगा। कुछ सोसाइटीज़ ऐसे करते हैं कि वो लोग 100 पार्किंग में से 10 या 20 पार्किंग को बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी ईवी पार्किंग लॉट अलॉट कर रहे हैं, और वो 20 में वो लोग पेमेंट गेटवे सोल्यूशन के साथ एक एक चार्जर 10 या 20 चार्जर लगा देते हैं, जिसमें मेंबर एज एंड व्हेन जिनको जब चाहिए वो अपने वो गाड़ियाँ वहाँ पे लगाएंगे और उस दिन वो लोग वहाँ पे चार्ज करेंगे। ये मेजर 2 तरीके में काम होती है। एंड अदरवाइज कुछ नए बिल्डर्स आजकल काफ़ी जो रिनाउंड बिल्डर्स है पूरे देश में, ये लोग आजकल नए प्रोजेक्ट्स में पार्किंग लॉट विद चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप जो नए फ्लैट ले रहे हो, आपका बिल्डर आपको एक एडवांस एसी चार्जर गिफ्ट भी कर सकता है। सो ऑन एन एवरेज कितनी जगह लगती है एक ईवी चार्जर सेटअप करने के लिए? से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 ईवीज खरीद लिए हैं, वन इज एन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, वन इज एन इलेक्ट्रिक कार, कितने स्पेस की मुझे ज़रूरत है उस चार्जर को सेटअप करने के लिए? आपको लगने वाली जगह 0 फुट है, क्योंकि ये सारी चार्जर दीवारों पे लगती है। आपके दीवार में थोड़ी जगह होनी चाहिए कि दीवार से निकला हुआ जो चार्जर बॉक्स है वो किसी के मूवमेंट में इंटरप्ट ना करें। उसके अलावा कोई जगह लगती नहीं है ईवी चार्जर लगाने के लिए, अनलेस आप एक चार्जिंग हब या एक बड़ा चार्जिंग पार्क सेटअप कर रहे हैं। उस मामले में आपको गाड़ियों की जगह लगेगी और एक 3 बाय 3 फुट का जगह लगेगा जिस पे एक डीसी चार्जर माउंट हो सकता है। सो आप कह रहे हो इस प्रोसेस के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें एक ईवी चार्जर इंस्टॉल करना है, इज इट अ वन टाइम थिंग और डू यू हैव टू कीप रीडूइंग समथिंग? कोई एक्स्ट्रा सिविल वर्क हमें करने की ज़रूरत है? जस्ट वेरी क्विकली टेल अस समथिंग अबाउट द ओवरऑल इंस्टॉलेशन प्रोसेस। एसी चार्जर जो लगती है वो सीधी किसी भी एक दीवार पे लगती है
हार्डली उसकी वेट 5 से 7 किलो होती है। एक वायर सिंपल क्लिपिंग करके लग सकती है और चार्जर माउंट सीधा स्क्रू पे होता है। उसके लिए कोई सिविल वर्क कुछ ज़रूरत नहीं है। जब डीसी चार्जर लगती है तो उसके लिए केबल हेवी हो जाती है, तो 30 to 50 स्क्वायर mm की केबल लगती है और उसको माउंट करने के लिए एक सिविल फाउंडेशन 3 फुट बाय 3 फुट की डालनी पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्जर लगने वाले डीसी वाली उसका वेट 2 से 300 किलो तक होती है। तो डीसी चार्जर के लिए सिविल वर्क ज़रूरी होती है। एक फाउंडेशन स्टोव डालना पड़ता है, प्लस एक कैनोपी लगती है, उसके लिए भी फाउंडेशन लगती है। तो डीसी के लिए फाउंडेशन काफ़ी सारा करना पड़ता है। तो आपने बताया दैट सम ऑफ द कार ब्रांड्स, सम ऑफ द टू व्हीलर ब्रांड्स विल हेल्प यू विद द इंस्टॉलेशन, बट इफ आई वांट टू गेट इट डन, क्या एज एन इंडिविजुअल आप एक ईवी चार्जर सेटअप कर सकते हो आपके इलेक्ट्रिशियन के हेल्प के साथ, या आपको एक प्रॉपर ट्रेंड टेक्निकल नो हाउ वाले कंपनी के पास, जैसे कि आप द सस्टेनर, इन्हीं को अप्रोच करना जरूरी है? एक ईवी चार्जर बेसिक काम एक इलेक्ट्रिशियन का ही है। केबल ले आना, केबल टर्मिनेट करना मीटर से, या जहाँ पे से इनपुट पावर आने वाली है वहाँ से पावर ड्रॉ करके एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के हिसाब से वायरिंग करना, केबलिंग ले करना, फिक्स करना, ये इलेक्ट्रिशियन का ही काम है। बट जब फाइनल काम हो जाता है और जब चार्जर के अंदर टर्मिनेट होती है, उसको कमीशनिंग करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ काफ़ी उसके चेक्स होते हैं, काफ़ी उसकी कैलिब्रेशन होती है। वो करने के लिए एक टेक्नीशियन इज़ नीडेड। मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच मेक चार्जर्स हैव देयर ओन ट्रेन टेक्नीशियन जो आके फाइनल कमीशनिंग करती है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब कोई चार्जर लें तो उस कंपनी के टेक्नीशियन के से ही चार्जर कमीशन कराएं। So I hope guys that we have answered the most important questions that you have about EV infrastructure. अगर आपने एक EV खरीदी है तो आप किस तरह से अपना चार्जर सेटअप कर सकते हो, कौन से प्रकार का चार्जर आपने सेटअप करना चाहिए, that also depends on your use case. And if you are a society, we have tried to answer your questions as well. इसके बावजूद अगर आपके और कोई सवाल हैं, you can ask us and we will try our best to help you out so that you can stay charged. Till next time, always drive safe, always take care of all your electricals in your EV, do not mess up with the wiring, stay safe, and always guys, wear your seat belts.